ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। रूल 170 है जो कहता है कि as soon as may be after the commencement of a session। कौन सा रूल सर? Rule 170, as soon as may be after the commencement of a session, all ordinances made and promulgated after the prorogation of the last session shall be laid on the table। आज के एजेंडा में ये ऑर्डिनेंसेस नहीं हैं, तो ये रूल 170 की वायलेशन है। मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। जी बाबर अवान साहब प्लीज, बाबर अवान साहब प्लीज, ये तारिक साहब थोड़ा प्लीज, चौधरी साहब, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। I agree to the extent of this rule, but this time limitation for the validity of any ordinance is given under Article 89 of the Constitution. We are bringing these because today, since it was the requisition of the opposition which was honored, and we thought that we should bring first of all the motion, and that motion is also moved by this side, and we are with the opposition. Let us discuss first that, and during this session we'll bring it. जी कैसर शेख साहब, एजेंडा जी शाहिद खान साहब। सर मेरी गुजारिश ये है, मैं मोहतरम एडवाइजर साहब का बहुत मशकूर हूं। मैं ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी की बात नहीं कर रहा, मैं इस असेंबली के ट्रेडिशंस की, इस असेंबली के रूल्स की बात कर रहा हूं कि रूल 170 बड़ा क्लियर है कि as soon as the session is held, the ordinances, all ordinances promulgated since the last session have to be laid on the house। ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये रिक्विजिशन सेशन है, लेकिन इस रिक्विजिशन सेशन का ये बड़ा लंबा एजेंडा भी है जो इसी हुकूमत ने सेट किया है। तो इसके अंदर ऑर्डिनेंसेस क्यों नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं कि ये ऑर्डिनेंसेस कब इस फ्लोर पर ले होंगे, क्योंकि रूल 170 कहता है कि आज ले होने चाहिए थे। जी बाबर साहब, बाबर साहब। Thank you, Mr. Speaker. I will have to read the language of this rule. I have already agreed and I have not disputed the fact which was brought to the notice of the chair by the opposition. It says as soon as may be after the commencement of a session. Two portions are important to understand. One is that it is not shall be that forthwith when there is a session, bring the ordinances on the first day. That is not the requirement of the rule. Maybe, number one. And number two, after the commencement of the session. It has commenced now. It is not the mandate, it is the discretion. But still, the point is since well taken, so I do not oppose that. Okay. जी कैसर शेख साहब प्लीज। जी शाहिद खान साहब। Of the honorable advisor, it is obvious that he has no intention of laying these ordinances on the floor of the house. Let me repeat that I do not see any intention of laying this ordinance on the floor of the house, because the spirit of this rule is that as soon as may be, that is the wording. The spirit is that the session has started, the ordinance should have been laid today. It has not been laid. So my question is that you will need to give a ruling on this, that when will these ordinances be laid on the floor of the house? The session has started, the ordinances have been promulgated, when will they be laid on the floor of the house? जी आप जो है ना मंडे तक इसको लेकर ले जी जी बाबर अवान साहब। I don't want to repeat myself for the third time. I have already agreed, and if we want to agree to disagree, then it's a debate. Otherwise, we'll be bringing it. No problem. आइन के आर्टिकल 89 के तहत भी ऑर्डिनेंस हाउस में पेश करना होते हैं। रूल 170 भी ठीक कहता है। जी शाहिद खान साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मंडे को जो है ना गवर्नमेंट ये ऑर्डिनेंस लेकर ले। ओके जी, थैंक यू।
थैंक यू जी। कैसर शेख साहब प्लीज, कैसर शेख साहब। तो ये बॉस पिच राणा साहब जी प्लीज। मेंबर हमारे राणा तनवीर। फार्मर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आपकी रूलिंग हमने मांगी है, ये आपकी डायरेक्शन है मंडे की रूलिंग आप काइंडली दें। ट्रेडिशन और रूल बड़ा क्लियर है, ट्रेडिशन भी, कि फ्यूचर में जब सेशन स्टार्ट हो वो दे दीजिए, मैंने रूलिंग दे दी। ये आप कहें ना रूलिंग दें कि आइंदा के लिए जब भी सेशन हो ऑर्डिनेंस यार ले करने चाहिए। ये रूल्स की स्पिरिट भी है, वर्ड भी है, और आइंदा के लिए ये ट्रेडिशन भी है। ये कभी नहीं हुआ आइंदा, तो आपने कह दिया ये मंडे को ले आएंगे, लेकिन आइंदा जो भी हो। बाबर रहमान साहब, जब भी हो तो जो रूल्स के मुताबिक जो है ना आप इसको ऐड कर ले और मंडे को लेके आए। जी बाबर रहमान साहब प्लीज। बाबर रहमान साहब प्लीज। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। हमने जो आपकी रूलिंग है, आप हमेशा रूल्स के मुताबिक ये हाउस चलाते हैं और हम हमेशा उस रूलिंग को ऑनर करते हैं, आप भी करेंगे। जी कैसर शेख साहब प्लीज। कैसर शेख साहब, कैसर शेख साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम उस आइटम पे डिबेट कर रहे हैं जो कि लोगों के मामलात हैं, जो कि हमारे 22 करोड़ लोगों को हिट करते हैं। और हमें इसी तरह के अपने ये ऐवान क्यों होता है, हमें लोग इलेक्ट करते हैं, वो हम पे तवक्कुआत रखते हैं कि हम उनके मसाइल के ऊपर डिस्कस करेंगे और उनका हल निकालेंगे। हुआ ये कि नए पाकिस्तान के सिलसिले में लोगों ने तवक्कुआत की पीटीआई हुकूमत पे। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आज जनाब स्पीकर 2.5 साल हो गए, अभी तकरीबन ये आधा अरसे से भी ज्यादा गुजर रहा है। तो लोगों की वो तवक्कुआत, क्योंकि जो कुछ हमारा अशर हुआ है महंगाई पे, जो कुछ इकानमी का सूरत हाल बनी है जनाब स्पीकर, मैं किसी को देखे, मैं वो फैक्चुअल ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं फैक्चुअल पोजीशन बताऊंगा, मैं वो फिगर्स दूंगा जो स्टेट बैंक की फिगर हैं, जो हमारी अपनी इकानमी के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की फिगर्स हैं। जनाब स्पीकर, बात ये हमारी इकानमी जब हमने मुस्लिम लीग की हुकूमत ने मई 2018 में छोड़ी तो 320 अरब डॉलर की इकानमी थी। केक का साइज 320 अरब डॉलर का था। वो आज 2.5 साल बाद बजाय बढ़ने के 290 अरब डॉलर हो गया है। ये फैक्ट्स, अगर इसमें कोई फर्क हो, कोई भी बात, ये क्यों, ये स्टैटिस्टिक्स हैं, जो फिगर्स हैं हमारे स्टेट बैंक की। तो अब वो जो 320 से 290 अरब डॉलर हो गया, उसमें भी ये हुआ जनाब स्पीकर कि हमने कहा था कि डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे। तो ये जितना भी टैक्स हमारा लग रहा है, जितने भी टैक्सेशन है, असद उमर साहब मेरे मोहतरम हैं, मेरे साथ उन्होंने बड़ा काम किया है फाइनेंस कमेटी में, और इससे पहले वो कई बार अपनी तकारीर में ये कह चुके हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्योंकि वो अमीर आदमी पे लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स गरीब आदमी पे लगता है। उसको डायरेक्ट यानी उसको उसकी महंगाई होती है, उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो हमारे क्या हुआ, परसेंटेज आप निकाल लीजिए, हमने जितने भी टैक्स लगाए वो सारा टैक्स उसमें इनडायरेक्ट टैक्स लगाया। मसलन मैं आपको मिसाल दूं कि हमारी पेट्रोलियम लेवी पिछले साल के जनाब स्पीकर 6 महीने में 135 अरब थी। आज इस साल के 6 महीने में जो गुजरे हैं दिसंबर तक, हमारी पेट्रोलियम लेवी 275 अरब हो गई। अब ये पेट्रोल का जो है, ये अमीर आदमी को टैक्स नहीं लगता। किसी के पास बड़े से बड़ी गाड़ी है और कोई छोटी गाड़ी है, तो अगर पेट्रोल लगेगा तो वो उस रेशो से नहीं लगेगा। यानी अमीर को ज्यादा, तमाम इकोनॉमिक्स का या जो भी कानून है वो ये है कि अमीर आदमी ज्यादा पे करे और जो आम आदमी है वो ना पे करे। हम तो टैक्स लगा रहे हैं पेट्रोलियम लेवी पे 275 अरब रुपए सिर्फ इन 6 महीनों में टैक्स लगाए। और इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास सारे जितनी भी हमने डिवैल्यूएशन की सर, उस वक्त कहते रहे, पहले दिन से मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल भुट्टो साहब ने, जरदारी साहब ने, उन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ इकानमी करें। हम सब मुल्क के लोग हैं, हम सब मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, चाहे किसी पार्टी से भी हो। हम पार्टी का इख्तलाफ, हम कोई आपस में दुश्मनी नहीं चाहते। जनाब स्पीकर, हमने लोगों को जवाब देना है जब हमने अपने हलकों में जाना है। हम पहले दिन से ये कहते रहे कि चार्टर ऑफ इकानमी करें, लेकिन ये बात आपस में झगड़ों में लग गई। सिर्फ चोर डाकू के अलावा कोई और बात होती ही नहीं रही इस असेंबली में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जनाब स्पीकर कि उस वक्त था कि हम फौरी तौर पे IMF के पास जाते, क्योंकि वो उस वक्त हमें अच्छी टर्म्स पे IMF जो है वो कर्जा देता। लेकिन हमने ये
डीवैल्यू किया इतनी ह्यूज क्वांटिटी में, 115 रुपए हम छोड़ के गए थे तो आज 159.5 है डॉलर का रेट, तकरीबन हमने 40% डीवैल्यू किया। जब डीवैल्यू करते हैं जनाब स्पीकर, तो जो चीजें बाहर से आती हैं, हमारी इंपोर्ट जो है जनाब स्पीकर 65 अरब डॉलर की है और हमारी टोटल इकानमी 290 अरब डॉलर की है। 22% हमारी टोटल हमारी इकानमी का इंपोर्ट है। तो जब आप 40% डॉलर का रेट बढ़ा देंगे, वो सारा रॉ मटेरियल, वो सारे खाने पीने की चीजें, क्योंकि हमारे पास पाम ऑयल नहीं है, हम तेल जितना भी है इंपोर्ट करते हैं, तो तेल कैसे महंगा नहीं होगा जब 40% डीवैल्यू हो जाएगा। दालें तमाम बाहर से आती हैं,